good morning, students. So before I am going to start the topic, just I want your participation. Just write down in the chat box what are the things that you look around you. क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अपने आसपास देख रहे हो या देखते हो? Just write down in the chat box. Table, almirah, television, trees, plants, table, books, clock, buildings, very good, houses, sofa, dustbin, nature, trees, vehicles, mobile, garden, very good, very good, pictures, laptop, chairs, dining table, mobile, cars, very good. So अब आपने जो आंसर दिए हैं, बट आंसर्स यू हैव गिवन टू मी इज दैट ट्रीज, प्लांट्स, गार्डन्स, ठीक है, टेबल, चेयर, मोबाइल, लैपटॉप एंड सो मेनी अदर थिंग्स. आपने ये सब चीजें बताई हैं मुझे, है ना? So all these things you can look around yourself. अपने चारों तरफ इन चीजों को नोटिस करते हो. तो जो हमारा टॉपिक भी है that is related to this, that is environment. ठीक है? So the topic that we are going to start today is from geography chapter 1, environment. This is our topic. Environment. So when we study about the environment, so what is the meaning of environment in common sense? So when we talk about environment, so whatever you see in your surroundings, जो भी आप अपनी surroundings में देखते हो, that comes under the environment. तो जो हमारा chapter है, that is chapter number 1 of geography. Now, अब इस chapter में क्या चीज है? From this chapter, you are not supposed to do any back exercise question. You can write down on the top of your chapter only source based question. Source based मतलब जैसे आपको इंग्लिश में comprehension passage आते थे, comprehension passages आते हैं ना, तो comprehension आएगा एक and कुछ terms होंगी that you have to define. No back exercise question you are going to do, okay? From this chapter, one source based question I will send you for the practice, ठीक है? And I will also send you important terms, ठीक है? जिसका definition वहाँ पे mention होगा, ठीक है? तो this thing you are going to do from this chapter. I hope I am very much clear to you. कोई back exercise questions नहीं करने हैं. Source based question आएगा, comprehension passage जैसे आपको इंग्लिश में आता है, definitions. Okay? Now I am going to start with the chapter. So as I already told you that whatever you see in your surroundings, that is environment. So this is the topic that we are going to do today. So ये जो chapter है, ये chapter कैसे start हुआ है? With a small story. इसमें जो एक लड़का है रवि, ठीक है? After a long vacation, he came back. He was just started going to school and he noticed. उसने क्या notice किया कि जो उसके स्कूल के पास जो playground था, only playground था, वहाँ उस playground को खोदा हुआ है, ठीक है? तो the people said कि यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी और उस बिल्डिंग में फ्लैट्स होंगे, फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड. तो जो रवि था, he felt very bad कि एक ही प्लेग्राउंड था जहाँ पे वो खेलते होते थे, अब वहाँ पे भी बिल्डिंग बन जाएंगी, ट्रीज को काट दिया जाएगा, अब वहाँ पे कहीं पे सॉफ्ट ग्रास नहीं होगी, वहाँ पे फ्लावर्स नहीं होंगे, बटरफ्लाइज नहीं होंगी. So he shared all his feelings with his friends. अपने फ्रेंड्स के साथ उसने अपने क्लासमेट्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, ठीक है? तो इवन जो प्रिंसिपल था, he also just observed all these things. It means he said कि जो हमारा environment है, that is changing. अब जो ये environment change हो रहा है, sometimes it's change because of the nature, but many of time it's
चेंज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, we try to modify the environment, we try to change the environment। आप अपने आसपास कुछ भी देख रहे हो, पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रोड्स हैं, ये सब एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ट्रीज, प्लांट्स, एयर, वाटर, एवरीथिंग, टेम्पल्स, ये सभी ही हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, बिकॉज वी सी ऑल दीज थिंग्स अराउंड अस। अब जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, इट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्यों बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है? बिकॉज दिस एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट एंड लैंड टू लिव। ये सभी चीजें हमें अपने एनवायरनमेंट से ही मिल रही हैं। So it is the basic support system. Okay? Then how do human beings modify this? इसको कैसे इसमें चेंज ला रही हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं? How they make changes in this environment? Now we are using vehicles. Vehicles में से fumes निकलती हैं, smoke निकलता है, हमने इंडस्ट्रीज सेटअप करती हैं, तो इंडस्ट्रीज में से भी काफी पॉल्यूटेंट्स, चाहे वो एयर पोल्यूशन कर रही हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने यूज के लिए जो नेचर के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की, उसका मिस यूज किया। हमने इतने ट्रीज नहीं लगाए जितने हमने ट्रीज को कट किया। ठीक है, वी स्टार्टेड यूजिंग व्हीकल। अब हमने थोड़ी सी दूर भी जाना होता है तो वी प्रेफर टू गो बाय स्कूटर और कार, तो उनमें से फ्यूम्स निकलती हैं, दैट पोल्यूट्स द एयर। ठीक है, एंड वाटर इज आल्सो कंटामिनेटेड समटाइम्स। जो वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम द सीवेज ऑफ द हाउसेस, दैट आल्सो मिक्स अप। So in this way जो human beings हैं, they modify the environment, क्योंकि हमने बहुत सारी मिल्स, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, इन सब चीजों को बना लिया है। तो जो बड़ा है, जो बिग है, जो हमारा जो मेन जो हम कर रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, we are just modifying the environment. Why we are modifying the environment? Because of our needs. हमारी needs के लिए why we are changing the environment. Let me explain. अब हम बात कर रहे हैं modify the environment. If we talk about the human beings हैं, they modify the environment. क्यों हम इसमें चेंज ला रहे हैं? The main reason है because of our needs. जो हमारी जरूरतें हैं और जो ये हमारी जो needs हैं, keep on increasing. Day by day ये जो हमारी needs हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। आज छोटी कार है, कल हमें बड़ी कार लेनी है। आज हमारे पास जो घर है वो छोटा है, नेक्स्ट टाइम हमें बड़ा घर, डबल स्टोरी वाला लेना। तो जो whatever needs we are having, वो बढ़ती जा रही हैं। So अब इन needs को हमने satisfy करना है। We need to satisfy the need. Our needs, तो there is need to modify the environment. So to satisfy the need, we modify the environments. Being a human being, हमारे पास हमारी बहुत ज्यादा जरूरतें हैं और ये जरूरतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं, keep on increasing, and to satisfy all these needs, we try to make changes in the environment. और कहीं ना कहीं जो बड़ा रीजन है कि जो पोल्यूशन है, जो हमारे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सीजन्स में चेंज आ रहा है, जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। डे बाय डे हम ट्रीज को कट करते जा रहे हैं। अगर आप देखो कि जो हमारी रोड्स बन रही हैं, 6 लेन, 8 लेन, तो सो मेनी ट्रीज आर बीइंग कट, पर उनकी जगह न्यू ट्रीज नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, तो एयर में डेफिनेटली जो पोल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो हु आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स? वी आर रिस्पांसिबल। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए नेचर को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो आपने मुझे एग्जांपल्स दिए, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, टेबल है, चेयर है। अब आप देखोगे विद एग्जांपल यू कैन सी
environment है that is of can be divided into two parts, natural environment and man made. एक जो हमें नेचर ने दिया है, एक जो ह्यूमंस ने बनाया, ह्यूमन मेड. टेबल, चेयर, बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, all these are made by human beings. ठीक है, तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये एनवायरनमेंट है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट, अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, here we can talk about the domains of the earth that we have already done in class 4 or class 6. Can you tell me the names? Write down in the chat box that we have done in the previous class. 6th class, major domains of the earth. Write down in the chat box. Hurry up. तेजस ने लिखा है एटमॉस्फेयर, वेरी गुड. रंजीता ने बायोस्फीयर लिखा है, वेरी गुड. मान्या हैज रिटन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर. ओके, हाइड्रोस्फीयर, वेरी गुड. सो अब जो हमारे जो डोमेन्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट डोमेन्स, सो दैट कम्स अंडर द नेचुरल एनवायरनमेंट. तो आपको पता है वी आर हैविंग 4 डोमेन्स. हमारे 4 डोमेन्स हैं. लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर है. देन हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, देन एटमॉस्फेयर, and the last one is biosphere. So who is going to tell me कि lithosphere deals with what? Lithosphere किससे साथ डील करता है? Write down in the chat box. Land, very good. Hydrosphere, hydrosphere. Water, very good. Atmosphere, atmosphere. Air, very good. And the last, the very important biosphere, right? Very good. Given right answer. Very good. Very good. So when we talk about these 3 domains, these main 3 domains are air, land and water. So they interact with each other. पर इनके जहाँ पे interaction होती है, वहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन होता है नैरो जोन, दैट इज बायोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट. ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज हाइड्रोस्फीयर, दिस इज एटमॉस्फेयर, एंड दिस नैरो जोन वेयर ऑल these 3 domains interact with each other, this is biosphere where life exists. Because जब हम लाइफ की बात करते हैं, we need land to live, we need water, we need air also. Land है, buildings construct कर सकते हैं, cultivation कर सकते हैं. Air we need to breathe, okay. Then water for daily purposes, we need water for daily purposes. So जो हमारे ये जो 4 main domains की बात होगी, that comes under the natural environment. अब आप देखोगे जो ये natural environment है, that can be biotic and abiotic. Maybe you have done in your science biotic and abiotic. Just raise hand, then I will unmute you to give the answer. Biotic and abiotic. Okay, Manveer Singh. Manveer. Ma'am, biotic components are the living components like humans, insects, microorganisms, etc. While abiotic components are the non-living components like table, chair, rocks, planets, etc. Very good, Manveer. So when we talk about bio का मतलब ही life होता है. Bio itself means life. तो जहाँ पे life exist करेगी, that is the part of biotic component, और जिनमें life नहीं है, that is abiotic. तो अगर हम ये 4 domains की बात करें, when we talk about the 4 domains, तो इसमें से जो lithosphere है, atmosphere है और hydrosphere है, land, water and air, that comes under the abiotic. वो abiotic में आते हैं. And when we talk about बायोस्फीयर, जब हम बायोस्फीयर
बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं, जहां पे लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, माइक्रोब्स हैं, दैट कम्स अंडर द बायोटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू, मतलब कि सोशल साइंस का भी पार्ट है एंड यू कैन रिलेट इट विद योर साइंस, क्योंकि साइंस में आपने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सो विद द हेल्प ऑफ यू, क्योंकि आपने इस चीजों को पढ़ा हुआ है, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो ये थे हमारे नेचुरल जो हमारे कंपोनेंट्स हैं। अब आते हैं हम ह्यूमन मेड। अब ह्यूमन मेड में क्या है, जो आप बात करते हो, टेबल है, चेयर्स है, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, टेम्पल्स हैं, ये सब चीजें किसने बनाई है? ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट था नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा हो गया हमारा ह्यूमन मेड, जो हम लोगों ने, ह्यूमंस ने बनाई। ठीक है, वी मेड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब एक और थर्ड कंपोनेंट है, इफ यू जस्ट सी एट योर बुक पेज नंबर 2, वहां पे ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात की गई है, ह्यूमन कंपोनेंट। देखो बेटा, वी आर एक्ट लाइक एन इंडिविजुअल बट वी आर लिविंग इन अ फैमिली। हमारे देखो मदर है, आपके फादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है। ठीक है, तो इस तरह से फैमिली भी बनी है। फैमिली के बाद आप नेबरहुड में रहते हो, ठीक है, तो वो भी उसी का पार्ट है। हम डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, दैट मेक्स द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने पॉलिटिक्स, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, किस तरह की गवर्नमेंट है, दैट आल्सो कम अंडर द ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो जो कंपोनेंट्स है, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, तो आप उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, जो हमने रिलेशंस बनाए हैं, ठीक है, मदर के साथ, ठीक है, मदर है, फादर है, अंकल है, आंट है, नेबरहुड में जो हमारे जो फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, रिलीजन को जो हम फॉलो करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओके, नाउ हाउ वी कैन डिफाइन द एनवायरनमेंट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। और जो हमारा एनवायरनमेंट है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। जैसे हम वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या जो भी है हमारे आसपास हाउसेस बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, लोग रहते हैं, चीजें भी हमारे आसपास हैं, कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये भी हैं, इवन we can also see the plants, we can also see the flowers. So जो भी whatever we see around ourselves, that is known as environment. So this is, we can say, the definition of the environment. ठीक है, so environment की definition क्या है? The place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. And I already told you कि जो हमारा natural environment है, उसको हम दोनों तरह से रेफर कर सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक जिनमें लाइफ है, द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एबायोटिक द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग। जैसे अगर हम लैंड की बात करें, एयर की बात करें, ठीक है, वाटर की बात करें, तो इनको हम किस में ले लेंगे? एबायोटिक में। और जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, तो इनको हम किस में लेंगे? बायोटिक में। बेटा जैसे माउंटेन्स है, एक तरह से लैंड फॉर्म्स है, दैट आर एबायोटिक। पर जो माउंटेन्स के अंदर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, दैट कैन कम अंडर द बायोटिक, उनको हम बायोटिक उसमें लेके आ जाते हैं। एज अ लैंड फॉर्म माउंटेन्स क्या है? एबायोटिक। पर वहां पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, आइदर इट इज प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, उसको हम किसमें कंसीडर करेंगे? बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, दैट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। ठीक है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, देयर आर 4 मेजर डोमेन्स, lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, that we have already done in class 6 also, and we will continue the topic. Okay, answer of first question is 40% of the state budget is allocated to the panchayat in Kerala. ठीक है,
सेकंड का आंसर है कोस्टा रिका इज वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका. वेरी गुड. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. Patients who visit the other country for the purpose of medical treatment. Very good. रंजीता ने फटाफट आंसर टाइप कर दिया है. Let me ask some other one. Manya, what is the answer for the third? Tejas. Ma'am, medical tourist. Medical tourist. Very good. Very good. Tanveer Singh Binning, give me the answer for the next. Outpatient department stands for. Outpatient department stands for. This is the short form for outpatient department. This is why people are first brought in and treated in hospital without being admitted to any special ward. Simple, you have to write OPD. Outpatient departments की जो है ना, ये आपको एप्लीकेशन थी ना OPD, तो OPD का जो हम कंप्लीट फुल फॉर्म लिखते हैं that is outpatient department. There is no need. ठीक है, आपने डिफाइन नहीं करना उसको. नाउ नेक्स्ट इज गणिका. गणिका, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PHC. PHC, Primary Health Care Center. Primary Health Care Center. Okay, primary health centers are there. Now primary health centers. Now the second is RMP. अक्षरा बताइए RMP की फुल फॉर्म. Registered medical practitioner. Very good. Registered medical practitioner. Very good. Name some of the waterborne diseases. Name some of the waterborne diseases. Let me ask anyone else. Okay, Isha. Waterborne diseases. Cholera, diarrhea, typhoid, dysentery are some waterborne diseases. Very good. Name the categories of healthcare. जो हमारी healthcare services है in India. So just give me the Mridul. Ma'am, public healthcare services and private healthcare So when services. we talk about India, तो जब हम healthcare services की बात करते हैं, that categorized into two parts: public healthcare services and private. Very good. What are the factors that affect the health? Trisha, what are the factors that affects the health? First is genetic disorders, second hormonal imbalances, third malfunction of body immune system, Okay. fourth अब quality बेटा, of if we the can relate with this environment. chapter, Trisha, health को क्या चीज इफेक्ट करेगी? Surroundings, sanitation, drinking water, food. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हमारी हेल्थ इन सब चीजों से भी अफेक्ट होती है. इफ यू आर नॉट गेटिंग द एडिक्वेट फूड, आप है ना, बच्चे जो है वो माल नरिश्ड हो जाते हैं. अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना हो तो सो मेनी डिजीजेस आर देयर. ठीक है, तो जो हमारा जो ये फूड है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, सराउंडिंग्स है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, so all these things affect our health. ठीक है, तो ये सब चीजें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है. ओके, सहजवीर. ओके सहजवीर, व्हाट्स योर आंसर सहजवीर? Ma'am, for the last question, यस बेटा, फॉर द लास्ट क्वेश्चन. the diseases, drinking water, adequate food, sanitation, and environment are the factors that affect our health. हाँ, तो त्रिशा जो आपने बताया वो डिजीजेस हो जाती हैं, कि जो डिजीजेस हैं, या हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता, अच्छी सैनिटेशन कंडीशंस नहीं मिलती, इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री नहीं है, सो दैट ऑल थिंग्स अफेक्ट आवर हेल्थ. इट मींस फॉर अ हेल्थी लाइफ देयर वी शुड हैव एडिक्वेट फूड, क्लीन सराउंडिंग्स, वी शुड हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर and good mental health also. Okay, so tomorrow we will continue the chapter of geography and solve the NCERT question answers.